Hello students, we are studying the medieval period, the Mughal Empire, and in the previous video we had studied about the Babur, Humayun, Sher Shah Suri and the administration of Sher Shah Suri. Now today we will study about the Akbar, who was the son of Humayun. So let's start. Akbar was born in 1542 AD at Amarkot, which is in Sindh, in the palace of the Hindu king Virsal. Humayun was a refugee at the court of the Hindu king of Amarkot. After the death of Humayun, when Akbar was proclaimed the emperor, he was only 13 years old. Since he was too small, Bairam Khan was appointed his regent. At the time of his coronation, Akbar's position was not strong in India. Adil Shah Sur, under the leadership of his Prime Minister Hemu Vikramaditya, captured Agra in Delhi after defeating the Mughals. In 1556, Hemu Vikramaditya and Bairam Khan fought at Panipat, and this is known as the Second Battle of Panipat. Hemu was defeated. Thus, Akbar became the master of Delhi and Agra. Bairam Khan, guardian and prime minister of Akbar, but he was killed on his way in Gujarat to pilgrimage to Makkah. Akbar took the reins of his empire in his own hands. So students, अकबर की हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर जो था वह राजा बना. उसका जो सक्सेसर था वो अकबर था हुमायूं का, और अकबर का जो जन्म था वो 1542 एडी को अमरकोट में हुआ, जो कि सिंध में था. वो एक हिंदू राजा के यहाँ हुआ था, वीरसाल में. और अकबर जो था, हुमायूं जो था उस वक्त रिफ्यूजी था. हुमायूं की डेथ के बाद अकबर को राजा तो बना दिया गया, लेकिन वो बहुत छोटा था. उस समय वो सिर्फ 13 इयर्स का था. तो उसको उसकी देखभाल के लिए, उसकी तरफ से राज्य को चलाने के लिए बैरम खान को अपॉइंट किया गया. जो बैरम खान था वो बहुत अच्छे से उसकी केयर भी करता था और साथ में राज्य में उसकी हेल्प भी करता था. अकबर की पोजीशन इंडिया में उस वक्त बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी. आदिल शाह सूर जो था वो हेमू विक्रमादित्य की लीडरशिप में उस वक्त काम कर रहा था. उसने आगरा और दिल्ली पर मुगलों को हराकर कब्जा कर रखा था. इन 1556 हेमू विक्रमादित्य और बैरम खान के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ, और जिसे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है, जिसमें कि हेमू की हार हुई, और इस तरह से अकबर दिल्ली और आगरा का सम्राट बना. बैरम खान जो था वह बहुत अच्छे से अकबर का गार्जियन भी था, वो प्राइम मिनिस्टर भी था, बहुत अच्छे से राज्य चला रहा था. लेकिन वह पिलग्रिमेज, मक्का के लिए पिलग्रिमेज है स्थान, वहां पर जाने के लिए निकला और रास्ते में उसकी गुजरात में मृत्यु हो गई. इसके बाद अकबर ने अपना जो एम्पायर था वो अपने हाथों में ले लिया. विक्ट्री ऑफ मालवा एंड गोंडवाना स्टेट्स. दोज डेज Mandu and Gondwana were two important states. Gondwana was ruled by Gond kings. Asif Khan attacked Gondwana and Rani Durgavati fought very bravely. But when she felt that victory is not possible, she ended her life. To strengthen his position, Akbar adopted the policy of matrimonial alliance with the Rajput kingdom, which never accepted the sovereignty of the Mughals. तो जब अकबर का दिल्ली पर राज्य था उस वक्त मांडू और गोंडवाना दो इम्पोर्टेंट स्टेट्स थे, और वहां पर गोंड किंग्स का राज्य था. तो उस वक्त में रानी दुर्गावती जो थी वो वहां की रानी थी, और आसिफ खान ने गोंडवाना राज्य पर अटैक किया. रानी दुर्गावती ने बहुत बहादुरी के साथ उसका सामना किया, लेकिन जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि जीत पॉसिबल नहीं है तो उन्होंने अपनी लाइफ को स्वयं ही समाप्त कर लिया. अकबर ने एक पॉलिसी और चलाई थी कि वह राजपूत कन्याओं से विवाह करना उन्होंने शुरू कर दिया. मेवाड़ के जो राजा थे, राजपूत किंग, उन्होंने इस पॉलिसी को, इस सिस्टम को नहीं अपनाया, और मुगलों के साथ उन्होंने कभी भी जो है सोवरेंटी का भावना नहीं रखी, और उन्होंने ये उनके साथ विरोध ही किया. उनका ये मानना था कि वो
बाहरी हैं, वो विदेशी हैं। Battle of Haldi Ghati. In AD 1576, a fierce battle was fought at Haldi Ghati between the famous Rajput king Maharana Pratap and the Mughal army, in which the Mughals won the battle. Maharana Pratap and his people went to a safer place to reinforce their military power. Even after his defeat in the Battle of Haldi Ghati, Maharana Pratap did not waver from his promise to free his motherland from foreign yoke. He was able to win back the whole of Mewar except Chittor, Ajmer and Mandalgarh. He has become a symbol of Rajput chivalry. His name and bravery have become immortal in the Indian history. Akbar himself used to praise Rana Pratap. He left for his heavenly abode in 1597. तो जो महाराणा प्रताप थे, राजपूत किंग थे, उनके और मुगल आर्मी के बीच में 1576 में हल्दी घाटी में एक बहुत भयानक युद्ध हुआ, जिसमें कि मुगलों की जीत हुई। महाराणा प्रताप जो थे वो वहां से चले गए एक सेफ प्लेस में, ताकि वो अपनी मिलिट्री पावर को और सुदृढ़ कर सकें और मजबूत कर सकें। यहाँ तक कि उनकी हार भी हो गई, लेकिन उन्होंने अपना प्रॉमिस किया हुआ था अपनी मदरलैंड से, मातृभूमि से, कि वो फॉरेन के कंट्रोल से उसको आजाद कराएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं भूले। वह पूरे मेवाड़ को वापस उन्होंने जीत भी लिया, लेकिन वो चित्तौड़, अजमेर और मंडलगढ़ को नहीं जीत पाए। राजपूतों के लिए एक बहुत ही बहादुर सिपाही के रूप में याद किए जाते हैं। उनका नाम और उनकी जो ब्रेवरी है वो इंडियन हिस्ट्री में अमर है। अकबर ने खुद राणा प्रताप की तारीफ की है और 1597 को राणा प्रताप जो थे वो स्वर्ग को चले गए। सो स्टूडेंट्स, we will read about the different policies of Akbar in the next video.